Greetings students and welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. Okay, now children, what are we going to do today? We are going to start a new poem. Okay, that is Father to Son from the book Hornbill. Okay, children, and what are we going to see? We are going to see the central theme, and then children, we are going to see what is the basic idea. We are going to talk about the author. Okay, now let us start. Now children, see, look at the picture. Who is she? She is Elizabeth Jennings and she is actually the author of the poem. और ये कौन है? ये author है इस poem की. ठीक है? Now author Elizabeth Jennings was an English poet born in Boston, Lincolnshire on 18 July 1926. तो कब born थी वो? 18 July 1926. कहाँ पर? She was born in Boston, Lincolnshire. Okay. When Jennings was 6 years old, her family relocated to Oxford, England, where she lived for the rest of her life. That means they moved to Oxford, England. While Jennings' poetry was not essentially seen as an autobiographical, her later work became more personal. क्यों personal क्यों? अभी बताती हूँ children. Jennings' poetry was deeply influenced by her Roman Catholic faith. Now, this lady, she had some problem with her personal life. So she had written many of the poetry related to the family, like her grandmother. ओके तो ऐसी पर्सनल चीज़ों पे एंड वाई इट इज़ आई ऑलवेज टोल्ड यू वाई इट इज़ नेसेसरी चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट दी ऑथर. हम ऑथर के बारे में क्यों पढ़े? ऑथर के बारे में इसलिए पढ़े चिल्ड्रन क्योंकि इट गिव्स एन आइडिया कि क्या होने वाला है, कि उनका आइडिया का था, कहाँ से आया है. ठीक है, तो बेसिकली चिल्ड्रन जब उनको पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम थी तो शी रोट मैनी पोएम्स. Okay, she wrote many poems which were related to these problems or like her grandmother. Okay, and she was facing a lot of difficulty in her personal life. Okay, children, now let us go about and see the central idea. Okay, let us see the central idea. The central idea of the poem is a generation gap. Generation gap जो हमारे साथ भी है, हमारे पेरेंट्स के साथ भी है. क्या है? Generation gap which occurs when the communication link between two generation breaks due to mutual lack of understanding, tolerance and acceptance. तो जो राइटर हैं वो क्या बोलने चाह रही हैं? वो बोलने चाह रही कि जो ये जनरेशन गैप है कब आता है? जब हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है. किसके साथ? हमारे पेरेंट्स के साथ. क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, टॉलरेंस. हम एक दूसरे को किसी बात को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं. हम ज़्यादा समझ लेते हैं कि हम क्या हैं, समझदार हैं. एंड देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस. क्या है? हम चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते. The poem reveals an internal conflict that the father undergoes when his son grows up and possesses his own interest, ideas and perceptions. अब जो ये पोएम है ना, ये कहाँ रिवील करती है? जो हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, बिटवीन अ फादर एंड अंडरगोज व्हेन हिज सन ग्रोज अप एंड पोजेसेस हिज ओन इंटरेस्ट. और जब सन अपने ओन इंटरेस्ट को पोजेस करना शुरू कर देते, आइडियाज को पोजेस करना शुरू कर देते. The unhappy father complains that he cannot understand his child despite having living together for so many years in the same house. तो he cannot understand his son. ठीक है, कि एक साथ रहने के बावजूद भी वो अपने बेटे को नहीं समझ पा रहा है. ठीक है, तो एक जनरेशन गैप है, कम्युनिकेशन लिंक टूट जाता है क्योंकि कोई म्यूचुअल लैक नहीं है, म्यूचुअल लैक है उसमें. राइट, एंड देन वो चिल्ड्रन द फादर इज अनहैप्पी क्योंकि वो ठीक करना चाह रहे हैं. ठीक है, इस बॉन्ड को जो कि वो टूट चुका है.
ठीक है। इंस्टेंट ऑफ बॉन्डिंग टुगेदर दे हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट, और वो जो एक साथ होने चाहिए थे, जो उनका बॉन्ड टुगेदर होना चाहिए था, दे हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट, मतलब वो अलग अलग हो चुके हैं। द गैप हैज रिजल्टेड इन नॉन कम्युनिकेशन एंड नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। और ये गैप क्यों आया चिल्ड्रन? बिकॉज देयर इज नॉन कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे के लिए। इफ बोथ ऑफ देम decide to take a lead and are willing to forget and forgive, their relationship will may improve. अब क्या बता रहे हैं वो कि दे इफ बोथ ऑफ देम डिसाइड टू टेक अ लीड, मतलब एक दो ये लीड करने के लिए कि हमें कम्युनिकेशन अच्छे से करना है और अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको फॉरगेट करना है और एक दूसरे को फॉरगिव करना है, माफ़ कर देना है, दे रिलेशनशिप में इम्प्रूव, और उनका रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सकता है। रिस्पेक्टिंग each other's differences is the only one out to diminish the distance between parents and children. और वो बोल रहे हैं रिस्पेक्टिंग, जब हम ईच अदर्स डिफरेंसेस, क्योंकि हम ऐसी जनरेशन में आ चुके चिल्ड्रन जहाँ पर हमें क्या करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे को खुद का स्पेस देना पड़ेगा। अब पुराने जमाने की बात नहीं है, राइट, वे द parent could not give distance, yeah, could not give the space to the children, but here we have to give the space to the child. Now children, we will move on to the what do you call it, little bit of introduction to the poem. Okay, now the Father to Son is a poem written by British poet Elizabeth Jennings. So who has written? Elizabeth Jennings. The poem describes the strained relationship, the difficult relationship between a father and his son. तो वो क्या describe कर रहे हैं कि it is a strained relationship. Out here when we talk about strained means difficult relationship between father and his son. The father knows that his son shares his blood. Shares his blood, उनके खुद के son के अंदर क्या है, उनके जीन से उनका blood है. Yet there seems to be great deal of misunderstanding between the two. इसके बावजूद भी children उनके बीच में बहुत ज़्यादा misunderstanding है, उनका blood होने के बाद भी, उनका genes होने के लिए बाद भी. Communication is flawed and son feels like a stranger to his father. ठीक है, और कम्युनिकेशन इज फ्लॉड, और दोनों एक दूसरे को के साथ जब होते तो ऐसा लगता है चिल्ड्रन कि क्या है, वो दोनों एक स्ट्रेंजर है. द फादर इज डेस्परेट टू एस्टैब्लिश अ हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन द टू. अब फादर क्या है, क्या चाह रहे हैं कि जो सारा चीज़ खराब हो चुकी थी, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसको री-एस्टैब्लिश करते. ही वॉन्ट्स टू एलिमिनेट ऑल द नेगेटिव थॉट्स एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स द सन. और वो क्या एलिमिनेट, ख़त्म करना चाहता है जो भी नेगेटिव एटीट्यूड है. ही वुड लाइक टू सी हिज सन क्लोज टू हिम रादर दैन मूव अहेड टू क्रिएट हिज ओन फ्यूचर. तो वो क्या चाहते हैं कि उनका जो सन है चिल्ड्रन, उनका जो सन है, राइट, ही वुड बी क्लोज टू हिम, ठीक है, उनके साथ ही रहे, रादर देन कि वो कहीं बाहर जाके अपना फ्यूचर बनाए. डिस्पाइट ऑल हिज पॉजिटिव रिजॉल्व, द फादर कैन नॉट कंट्रोल द रैंडम एंगर अ सर्टन सिचुएशन दैट अराइजेज फ्रॉम ग्रीफ. ग्रीफ इज दुख, ठीक है, सैडनेस ही हैज एनकाउंटर्ड थ्रू द ईयर्स. अब वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि डिस्पाइट ऑल द पॉजिटिव रिजॉल्व, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमको क्या करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए, राइट, एक दूसरे की लड़ाई से रिजॉल्व होना चाहिए. द फादर कैन नॉट कंट्रोल द रैंडम एंगर जो उनको होती होगी, ठीक है, गुस्सा आता होगा उन्हें, इन सर्टन सिचुएशन दैट अराइजेस फ्रॉम द ग्रीफ ही हैज एनकाउंटर्ड थ्रू दिस ईयर. Okay children, now let us move on to the text. Okay, now open your books. Now let us start. Father to Son. It says Father to Son by Elizabeth Jennings. She is the writer. Okay, who is she? She is the writer. Okay, now first paragraph. Let us go to first paragraph. वो क्या बोलता है? I don't understand this child. I किसको बोल रखा है? Sorry children. क्या बोल रखा है इसको? आई किसे बोला है? आई इज दी फादर, आई इज दी फादर, वो फादर को बोल रखा है. कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस सन, दिस देखो, वाई कैन नॉट ही राइट माई सन,
है ना. He can also say that it is my son. नहीं, but he says that I cannot understand this son, this child, sorry, though we have lived together now. अब वो बोलते हैं in spite, कि हम एक, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, कौन, क्या, कि इस बच्चे को, instead of writing my, he writes this. दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, और हम क्या है, एक साथ रहे हैं, ठीक है, हम कई बार एक साथ रहे हैं, ठीक है, इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, और कई सालों तक हमने क्या है, एक ही घर में रहे हैं, राइट. आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज देन स्मॉल, येट हैव आई किल्ड. और वो बोल रहा है दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, और बोल रहे कि हम कितने बहुत साल हो गए कि हम एक साथ क्या रह रहे थे, इस घर में रह रहे थे, राइट. आई नो नथिंग ऑफ हिम, तो वो बोलता है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है, आई डू नॉट नो एनीथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशन फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल. बट वो पूछ रहा है फिर हाउ कैन वी बिल्ड दिस रिलेशनशिप वेन ही वॉज स्मॉल, ठीक है. येट हैव आई किल्ड, yet have I killed. So in the above stanza, the poet shares his feeling about the relationship with his son. है ना, इस stanza में कैसा relationship है. He says that although they both have lived together, है ना, बोला गया ना यहाँ पर we have lived together now, ठीक है, in the same house for many years, for years है ना, for many years, yet he does not understand him, ठीक है, फिर भी बहुत साल होने के बावजूद भी ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम. ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट हिज सन, हिज लाइक्स और हिज डिसलाइक, नथिंग ऑफ हिम, मतलब आई नो नथिंग ऑफ हिम, मतलब ही डज नॉट नो एनीथिंग ऑफ हिम, ही डज नॉट नो हिज लाइक्स, ही डज नॉट नो हिज डिसलाइक्स. He tried to build up the relationship with him from time he was in vain and small. So he's like up to relationship. So try to build up a relationship. यहाँ से वो बोलता है so I tried to build up a relationship. यहाँ से ना so I tried, sorry. He says that so I tried to build up a relationship him. उसने बोला मैंने बहुत बार कोशिश करी कि मैं इस relationship को build करूँ, ठीक है, from time, ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट ही वॉज इन वेन, पर सब कुछ वेन में चला गया, कुछ हासिल नहीं हुआ, राइट. एंड स्मॉल, हिज सन हैज चेंज एज ही हैज ग्रोन अप, और येट हैव आई किल्ड. और वो बोलते हैं जैसा देखा जाए क्या बोलते हैं, माई सन हैज ग्रोन अप, ओके, वो क्या है, अब ग्रोन अप हो चुका है, एंड दैट इज वाई ही कैन नॉट अंडरस्टैंड कि what to do, how to actually resolve this conflict between the father and son. Okay, now next paragraph we see the seed I spent or sown it where, the seed, ठीक है, the seed I spent और sown का मतलब यहाँ पर है do something which will bring a result, ठीक है, तो क्या है, do something, okay, which will bring a result, right, which will bring a result. ठीक है, इसका मतलब सोन का मतलब है, ठीक है. अब वो क्या बोलते हैं, द फादर यूजेस आई इन द फर्स्ट लाइन टू एक्नॉलेज हिज रोल इन द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन देम. द सीड आई है ना, यहाँ पर देखो आई यूज करता है, क्यों करता है, द फादर यूजेस आई in the first line to acknowledge his role in the communication gap between them, ठीक है. वो बोलते हैं the seed I've spent or sown it where, the land is his and none of mine, we speak like strangers, there's no sign of understanding in the air, this child is built of to my design, yet what he loves I can't share. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, he says that despite all efforts his son was in another place that his father cannot access, ठीक है, the land is his and none of mine. बोले कि हम क्या है, अलग अलग जगह में रह रहे हैं,
ठीक है, he says that despite all efforts his son was in another place that the father cannot access. वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, और साथ होने, कई बार हम साथ होने के बावजूद भी हम कैसे हैं, स्ट्रेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते हों. तो वी एक्ट लाइक दी स्ट्रेंजर्स. देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर. ठीक है, दे यूज टू टॉक टू ईच अदर लाइक स्ट्रेंजर्स एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम. ठीक है, नो, द चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन येट वॉट ही लव्स आई कांट शेयर. इज लाइक हिज चाइल्ड यूज टू लुक लाइक हिम, क्योंकि ऑब्वियसली सेम बॉर्न बेबी है, राइट, ही इज द सन. ओके, तो जीन्स भी जाएंगे, ब्लड फ्लैश सब उसके फादर का होगा. तो दैट इज वाई ही सेज दैट द चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन. ठीक है, क्योंकि जीन सेम है, ब्लड सेम है, फ्लैश सेम है. येट वट ही लव्स आई कांट शेयर. और वो बोलते येट ही डिड नॉट नो वट हिज सन लव्ड. ठीक है, और उसको पता ही नहीं है कि उसके बेटे को क्या पसंद है. ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. ओके, now let's move to next paragraph. Silence surrounds us. Then he says that silence surrounds us. ठीक है, इट्स मीन देयर इज साइलेंस बिटवीन देम. जब भी वो बैठते हैं, ठीक है, जब भी वो एक दूसरे के साथ रूबरू होते हैं, राइट, व्हेन दे सिट टुगेदर देयर इज साइलेंस, देयर इज नो वर्ड, राइट, there is silence. I would have him prodigal return to. I would have him prodigal. Prodigal means that spending money freely. Okay, prodigal means spending money freely. Okay, what does prodigal means? Prodigal means spending money freely. Now he says silence surrounds us. बोले जब भी हम साथ रहते हैं कि साइलेंस हमारे साथ रहता है. ठीक है, I would have prodigal returning to his father's house. I would have him prodigal. That means as a child he was a prodigal son and now his father wanted him to return to his house, the one he knew. ठीक है, prodigal मतलब वो कभी भी, वो कुछ भी, वो बोलते मैं रोक टोक नहीं करता हूँ, उसको जहाँ मर्जी है वो स्पेंड करता है. ठीक है, बट सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा वापस आ जाए. ठीक है, सी हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू, है ना, बोलता है कि जो घर उसको पता है. ठीक है, आई वॉन्ट हिम टू कम बैक. ठीक है, रादर दैन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड. अब वो क्या बोल रहा है, he didn't want his son to move around and make his own world. वो बोलता कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, rather than see him make and move his world, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो दर दर हर जगह जाए. ठीक है, मैं चाहता ही नहीं हूँ, राइट. इंस्टेड दैट वो क्या आ जाए, घर आ जाए. आई वुड फॉरगिव हिम टू. अब वो बोलता है मैं उसको माफ कर दूंगा. आई वुड फॉरगिव हिम and let go all the sorrows he had inside because of him. और वो बोलते हैं मैं माफ कर दूंगा. ठीक है, उसको माफ करूंगा, जो भी सॉरोज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं सबको क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा. आई वुड फॉरगिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव. और फिर वो बोलता है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो भी डिस्टेंस आ गया है, ठीक है, जो भी दुख एक दूसरे के वजह से आया है, कि वो बोल रहा है कि मैं उसको माफ करता हूँ. ही वॉन्टेड टू लव हिम अगेन. ओके, तो वो क्या चाहता था कि who wanted to love him again. Let us revise this paragraph. He says there is silence between them. ठीक है, वो बोलता है कि हम दोनों के बीच में साइलेंस है. किन दोनों के बीच में, फादर और सन के बीच में साइलेंस है. As a child he was a prodigal son. Prodigal son, a person who spends a lot, and वो कभी रोकता भी नहीं थे. ठीक है, and now his father wanted him to return to his house, the one he knew. और वो चाहते हैं कि वो, उसके फादर क्या चाहते हैं कि कुछ भी हो, कितना भी स्पेंड कर रहे हैं, मेरे को सिर्फ एक ही बात आती है कि वो क्या आ जाए, घर आ जाए. ठीक है, rather, ठीक है, he didn't want his son to move and around and make his own world. उसे कि मैं नहीं चाहता कि वो इधर उधर घूमे और अपना घर बनाए, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे घर, हमारे घर वापस आ जाए. He was ready to forgive him. अब वो बोलता कि मैं रेडी हूँ कि मैं उसको माफ कर दूंगा. ठीक है, and let go all the sorrows he had inside him because of
him. और वो बोलता है he has already he was ready to forgive him and let go of the sorrows he had inside because of him. और बोलते हैं कि मेरे अंदर जो दुख है, जो उसके वजह से दुख है, मैं उसको लेट गो कर दूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैं बस चाहता हूं कि मेरा बेटा वापस आ जाए. ठीक है. बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. और क्यों हुआ है ये बिकॉज देयर इज डिस्टेंस बिटवीन देम. ही वॉन्टेड टू लव हिम अगेन. और वो बोलता है कि मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आई शुड लव हिम अगेन. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पैराग्राफ. फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड. बोलते हैं जैसे फादर एंड सन, वो अपनी मैं मतलब फादर बोल रहा है अपने आप को, मैं और मेरा सन मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड ऑन द सेम लैंड. बोलता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए ऑन द सेम लैंड. ठीक है. द सन स्पीक्स. ठीक है. वो बोलता है कि हमें क्या रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए. राइट. ही स्पीक्स. आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ. ठीक है. देन ही सेज we each put out in an empty hand, longing for something to forgive. Right. Then what does it say? What does the writer say? Then what does the writer say? Writer saying the son speaks for the first time and explain what he feels. ठीक है. ही ऑल्सो फील सैड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब बेटा क्या है, पहली बार दुख अपना जाहिर कर रहा है और बता रहा है कि इवन ही फील्स सैड. ठीक है. ही ऑल्सो फील्स सैड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन देम. और वो बोलता है कि हमारे बीच क्या आ गया, बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया है. ठीक है. एंड ही फील्स सैड अबाउट इट. ठीक है. ही शेयर्स दैट एट दिस पॉइंट वेयर ही डजंट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ. ठीक है. और फिर वो बोलता है he also feels sad about the distance between them. He shares that he is at a point where he doesn't understand himself. वो बोल रहा है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या ऐसी चीज़ें दैट मुझे ऐसे एकदम से आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ. हिज एंगर अराइजेस आउट ऑफ हिज सैडनेस. एंड देन वो बोल रहा है हिज एंगर. ठीक है. बिकॉज ही इज लाइक ही स्पीक्स, बोलते हैं ना, ही इज लाइक then he says that his anger arises out of sadness. बोलते उसका जो गुस्सा है, जो उसका गुस्सा है किस चीज से अराइज होता है, उसकी सैडनेस से. ठीक है. इट इज quite clear that on both sides lies the same frustration about the gap in the relationship. अब हम इससे पता चलता है कि दोनों के बीच में जो भी गैप है, जो भी प्रॉब्लम है, वो राइज क्यों होते चिल्ड्रन, बिकॉज देयर इज जनरेशन गैप. ठीक है. दे बोथ वॉन्ट टू फॉरगिव ईच अदर एंड येट दे कैन नॉट फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. और वो बोलते हैं कि हम दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को माफ करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बट येट द प्रॉब्लम अराइजेस एंड देयर इज नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. ठीक है. क्या बोलते हैं, देयर इज नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. बोथ ऑफ देम put out an empty hand for the other to seek, always in vain, always in vain. Then he says that I would forgive him too. है ना. टू मतलब that means सन बात कर रहा है, बोल रहा है कि मैं भी उनको माफ कर देता. शेप. ठीक है. Then he says we each put out an empty hand longing for something to forgive. और वो बोलता है कि हम क्या करते, एक दूसरे को माफ कर देते. Okay, we will forgive each other. Okay, now again let us revise this paragraph. Now let us complete the last paragraph one more time. It says that यहाँ पर क्या बोलते हैं, पहले फादर बोलते हैं, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव. बोले कि हम दोनों एक साथ रहने को तैयार है. वी शुड लिव टुगेदर ऑन द सेम ग्लोब. जहाँ पर हमारा अपना स्पेस है, जहाँ पर अपना घर है, वी शुड लिव टुगेदर ऑन द ग्लोब एंड द सेम लैंड. और वो बोलता है और ये सेम लैंड पे हमें क्या रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए. ओके. देन व्हाट डज इट से. उसके बाद अब लास्ट बार, इतनी बार बोलने के बावजूद भी ही स्पीक्स. अब यहाँ पर ही कौन है, सन है. कौन है यहाँ पर, सन. अब सन बोलता है. सन क्या बोल रहा है,
ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एक्सप्लेन्स व्हाट ही फील्स। अब वो पहली बार अपनी फीलिंग्स के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखते हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। और वो बोलता है ही ऑल्सो फील सैड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन देम। सबसे पहली बात वो सैड फील कर रहा है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ मेजर डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट? And he also feels he shares that he is at the point where he doesn't understand himself। और वो इस पॉइंट पे कि वहाँ ये अपने आप को अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा है। His anger arises out of sadness। ठीक है, और गुस्सा आता है उसको, अपने फादर से सेपरेट होके भी गुस्सा आता है। That why it anger arises out of sadness। It is quite clear that both side lies the same frustration about the gap of the relationship। अब क्या है ये दोनों साइड पे ये पता है कि क्या है, देर इज अ गैप बिटवीन द रिलेशनशिप। दे बोथ wanted to forgive each other and yet cannot find a solution। एक दूसरे को माफ भी करना है उन दोनों को, बट एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। बोथ ऑफ देम पुट आउट एन एम्प्टी हैंड फॉर द अदर टू सीक। और एक एम्प्टी हैंड होता है कि ताकि एक दूसरे को पकड़ ले, बट देर इज ऑलवेज इन vain and everything is in vain। Okay children, now children, in the next video we will talk about the figure of speeches, literary devices and question and answers। I hope you could understand the poem well। Please like, share and subscribe। Thank you children, thank you very much।